नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के साथ इजरायल के युद्ध के बीच में देश छोड़ने के इच्छुक 212 भारतीयों को लेकर पहली चार्टर्ड उड़ान गुरुवार को बैन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई। ये फ्लाइट आज सुबह अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड की थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थानीय समय अनुसार रात 11:14 पर भारत के लिए रवाना हुए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की जय। जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। तो आपको इवैक्यूएशन के लिए आप किसी को थैंक्स करना चाहिए? हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे हम ये डिसीजन लिया है। थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, बसता है वो बसता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। First of all, I would like to thank Indian embassies over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here quickly, and this is very excellent. I think this operation is very excellent and successful. All we came here, and we are very happy to come back to India. So yes, and also the Israel government is doing very good job. Their IDF, Israeli Defense Forces, they are doing day night. They are fighting for their people, for us, for the foreigner who are working there. And this is the actually safe place. Here we can see that we are looking at the many video watching, but actually they are inside the Israel. It is safest. We live in southern part, like the city is Midrisha. It's safe, but we decided because of him, we decided to come back to India. So how was it? Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we run to shelter, and with him, it's very hard. But we manage. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. Yeah, we are so relaxed, and we thanks government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, इन कॉन्टेक्ट. सो दे वर कोऑपरेटिंग विद अस, या, एंड गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, एंड दिस वाज स्मूथ, it was good, yeah. Yeah, we are very happy for the Modi government to help us support for this help has evacuate through Operation Ajay, and we are very thankful for us to provide. No, look, it's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay.
and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. Stay calm, be in touch with the embassy there, because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. फिलहाल तो हमारे रीजन में उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आई एम गोइंग देयर। क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी आपको इस फ्लाइट को लेने के लिए? जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंफर्म करें, और कंफर्मेशन के लिए मैंने एक फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ, फिर फाइनली वो लोग कंफर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो गया। आप जस्ट डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कॉल्स आ रहे थे? मेन रीजन वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूअस आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भारत सरकार को? उन्होंने ऑपरेशन अजय चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं, बेसिकली आउट देयर इन आवर होम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। मैं तो इजराइल में घूम रहा था, मेरी बेटी PhD कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया इधर, इसके कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला, तो हम एम्बेसी से कांटेक्ट किया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। नहीं, हम बहुत सेफ जगह पे थे और बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे हम, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया, Modi is the great. Yeah, I am very happy, and like it's been really scary here. Now we are going home and see you in India. Any message to the Indian government? Yeah, thanks a lot Indian government for sending this evacuation. Thanks a lot. The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. Yesterday, the External Affairs Minister announced Operation Ajay to help those Indians who wish to return to India. And today, under that Operation Ajay, the first flight is going back to India. It's going to have almost 200 Indian citizens. These are students, caregivers, business professionals. And we are trying to ensure that we have similar flights in the coming days. We will have one flight tomorrow. And again, through you, I would like to reach out to my fellow Indian citizens here and urge them to remain calm, stay safe by following the local safety advisories, and tell them that we are always there with them. We are standing with them. वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन के सभागार में नव चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 219 प्रधानाचार्यों के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चयन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाए, अतिरिक्त समय में प्रतियोगी परीक्षाओं
की तैयारी कराए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि कर रही है। 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे, जबकि आध्यात्मिक पर्यटन में भी 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पहले जहां 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 30 करोड़ सालाना हो चुकी है। ये भी रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि कर रहा है। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जो एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। ये पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी, यह भी करके दिखाया। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सके। अवश्य किया जा सकता है। जौनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लकड़ी व्यापारी को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताते कि ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़ लिया, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मडियाहू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तीनों बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी थी। जैसे उनको ये कंप्लेंट मिली, उसके बाद से बता दें कि पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। और लकड़ी व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले यहाँ पे बात हुआ, उसके बाद से देखिए किस तरीके से गोली मार दी गई। सरेआम भारी लोग यहाँ पे मौजूद थे। जौनपुर का ये वाक्य है जहाँ पे दिन दहाड़े ये गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगह पर ईडी की रेड हुई है। दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदारों पर ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल ईडी ने बीते दिन पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारन को गिरफ्तार किया था। ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारन ने दिनेश खोडनिया का नाम लिया, जिसके बाद ईडी ने दिनेश खोडनिया पर शिकंजा कसा।
और उत्तर प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का सहारनपुर दौरे पर है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सर्किट हाउस के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव पर सड़कों का प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सहारनपुर से सीएम योगी का विशेष लगाव है, इसलिए सभी सड़कों को जल्द ही ठीक कर दिया जाए। मेयर साहब आगे आइए। भारत की विदेश नीति के खिलाफ एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाली गई, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई, जिसको लेकर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एएमयू के जुलूस का समर्थन किया है, जहां उन्होंने कहा है कि एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए बीजेपी की आंखों में 24 घंटे खटकती है। बीजेपी सवाल उठाने वालों पर ही सवाल दाग रही है। सहारनपुर के देवबंद से एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों आरोपी अवैध घुसपैठियों को भारत में अवैध दस्तावेज बनवाकर उनकी मदद करता था। फिलहाल एटीएस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगरा में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आईपीएल सट्टेरियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते थाना ताजगंज इंस्पेक्टर देवेंद्र शंकर पांडे ने होटल रुद्र विलास 5 आईपीएल सट्टेरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से 6,800 लैपटॉप, मोबाइल, पैन कार्ड बरामद किए हैं। वहीं थाना शाहगंज इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने भी 3 आईपीएल सट्टेरियों को गिरफ्तार किया। और अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर खून से लथपथ शव मिला है। बताया जा रहा है कि दोस्त ने दोस्त का हत्या कर दिया। बता दें कि मामूली बात को लेकर युवक ने अपने दोस्त को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी है। मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कोच्ची गांव का बताया जा रहा है। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं जौनपुर, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोगों को स्वच्छ पेयजल देने के लिए, घर घर स्वच्छ पेयजल के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई थी, जल जीवन मिशन। इस योजना को धरातल पर योगी सरकार तेजी से लागू करवा रही है और प्रदेश के लोगों के हर एक घर तक इस योजना का लाभ पहुंचा रही है। जौनपुर जिले की बात करें तो जिले में 21 ब्लॉक हैं और 3,374 गांव, जिसमें 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम तेजी से हो रहा है। वहीं घर पर स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और वो योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। गांव के प्रत्येक गरीब किसान जो हैंडपंप नहीं लगवा पा रहे हैं और तमाम तरह की जिनको जल पानी से दिक्कत होती थी, उनको गांव-गांव में पानी की टंकी लगाकर सरकार उनको उसका कनेक्शन देकर सरकार वहां पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल का एक अभियान छेड़ा हुआ है और उससे स्वच्छ जल की आपूर्ति हर घर तक पहुँचे, गाँव में पहुँचे। मुझे लगता है इससे बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, जिससे इलाज का खर्चा लोगों का बचेगा। स्वच्छ पेयजल से ही सुंदर स्वास्थ्य का निर्माण होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसके लिए हमारी सरकार ने इस पे कार्य किया और आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं।
योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जी जान से काम कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। घर घर पेयजल के नल लग रहे हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे जनता गदगद है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।